possible, please explain about how you can connect the domain with the server? Sure, I'll definitely explain that. And before I go ahead, very good morning to each and every one of you. And let's learn something new here. All right. And thanks, Naman, for choosing me. So what I'm going to do is I'm just going to go ahead and I'm going to share my screen here. Right. So just bear with me for a 1 quick minute. All right. So here we go. So this is my customer ID. You guys might have a bigger ID because this was 10 years earlier when I got this particular ID. So however, so I'm just signing in. Keep me signed in, logging in. All right. So here are a couple of domains which are going to expire. You can see them and so on. However, this is the hosting that I have. And as Naman was talking about cPanel, which is a control panel, I generally prefer taking Linux hosting. Why Linux hosting? Because the hackers who are there, generally they tend to hack sites which are on Windows platform because that's much easier. Linux, Unix, these are platforms. I'm not saying hackers cannot hack them. They can definitely do anything they want, but the chances are less. It's much secure. That is the main reason. And having said that, just give me 1 quick minute. So I'm just going to go to manage. First, I'll show you the cPanel, how it looks like. As because I'm sharing it on the internet, it might take some time. It's taking a couple of time. I don't know why. All right. So when you go to the cPanel, before you enter the cPanel, these are the websites which are hosted on the cPanel itself. So there are many domain names which I have given hosting as. So it is something like this, as Naman correctly said, that it is a name for which you need to give a particular space where the name would be there. So that if you search for an address, you go to that particular address and you find a particular house over there. But what if you search for the address, but there is nothing? So this is where the hosting comes into picture. So hosting is basically a space. Now, when I'm talking about this particular space, that is what I have given here against these domains. So having said that, this is the cPanel login that I already have. And this is something which is the server IP. So this is the server IP. Can you guys see this properly? All right, great. So any doubt till now? Yes, no, I don't know, I don't care. Okay, only Lakshmi Srinivas has responded no. Only 2 persons no. Anybody else who has any doubt? Great, so I can move forward now. So this is the IP that should resolve. Now this IP is the IP address, not of your website. Remember this. This IP address is the address for my server, hosting server.
This IP is the address of my hosting server. So whatever domain is there, I have to point it to this server. Only then the website will work. Else it will not work. Up to this much. Clear? So remember this. This IP address is okay. I'll definitely explain the cPanel. I haven't explained the cPanel yet. cPanel is actually control panel. All right, Manvi, can you please type in here, like what exactly is the thing that you didn't understand? Is it the IP address that you're talking about that you didn't understand? Manvi, are you there? Yeah, I'm doing it from scratch itself. I am just doing it from scratch itself. So first you log in, you go to the hosting. Okay, let me log out and log in once again. It's in my wife's name because I used to work for Google. So they could have taken my job away. So that is the reason. Okay, let's log in once again. Let's sign in. I'm putting my user ID. I'm putting the password, which is already saved. Obviously, I don't remember that. Up to this much, is it okay for everyone? Come on, guys. Okay. Now, these are all the products that we have purchased. These are the domains like technosavvy.in, mytgbrand.com, Exponet, magicaltouch.in, and so on and so on. I have actually transferred most of the domains to Namecheap. Why? Namecheap is much cheaper and it's much vast. But Namecheap is not for you guys because you are just doing the starting point. As Naman said very correctly, Namecheap is very complicated, very, very complicated. Only technical persons love that. Why? Because it's complicated. And there are many, many options. So that is the reason. And much cheaper as well. However, GoDaddy is also a pioneer, and being, like Linux hosting. Ronak, it's Linux. 100% Linux. I would suggest Linux because Linux is safer, much safer. Linux was first discovered by Linus Torvalds in 1972, and it was built on the core of Unix operating system. So it is much, much better than Windows. Windows has been hacked several times. Linux also has been hacked, but the number is countable. Maybe 4 times, 5 times, or 6 times. But Windows has been hacked more than 200 times. So now you know which one to choose. Right? So I prefer Linux system. But that doesn't mean that you need to know Linux. No. To write a murder mystery, you don't need to do a murder, right? Okay. मैं हिंदी में भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. लिनक्स जो है ये लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने 1972 में या 1971 में उन्होंने इन्वेंट किया था. इसका जो कर्नल था वो यूनिक्स था और लिनक्स सर्वर जो है ये हैक हुआ है 10-12 बार हुआ है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हुआ है. लेकिन जो विंडोज है वो तो 200 से ऊपर गया है, उससे ज्यादा ही गया है शायद, इतनी बार हैक हो चुका है. और जहां तक बात है कन्वर्ट नहीं होता है. विंडोज एक अलग सर्वर है, लिनक्स एक अलग सर्वर है. विंडोज सर्वर होती है IIS सर्वर, लिनक्स सर्वर होती है अपाचे सर्वर. तो दोनों अलग सर्वर होते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. आप अगर विंडोज ले रहे हो तो बी एंश्योर्ड दैट यू आर गोइंग फॉर IIS सर्वर, और अगर आप लिनक्स ले रहे हो
तो इसका मतलब है आप अपाचे सर्वर में हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। दो अलग बच्चे हैं, दो अलग लोग हैं, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल रखो इसको। मतलब दो अलग अलग ब्रांड है, दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, सीधी सी बात। इसका उसमें नहीं मर्ज हो सकता, सिंपल हिसाब रखो। और जहां तक बात है, ये मेरा सारे डोमेन्स है और ये है होस्टिंग सर्विसेज। एक बुक कीपिंग सर्विस उन्होंने फ्री दिया था, मैंने लिया नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये है जो लिनक्स होस्टिंग है। ये होस्टिंग का सी पैनल है। सी पैनल में जाने से पहले मैं मैनेज करना चाह रहा था। मैनेज इसलिए कि आपको दिखा सकूं सर्वर का डिटेल्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर आपको कुछ चीजें देखनी है। प्राइमरी डोमेन, जब आप कोई भी होस्टिंग ले रहे हो, होस्टिंग में आपको एक प्राइमरी डोमेन देना पड़ता है। मेरे पास पहले 17 डोमेन था, 17 में से एक डोमेन मैंने प्राइमरी डोमेन रखा जिसके ऊपर ये होस्टिंग है। तो उस पर्टिकुलर डोमेन, ये है प्राइमरी डोमेन mytgbrand.com, ये मेरा प्राइमरी डोमेन है। इसी के ऊपर होस्टिंग लगा हुआ है और बाकी जितने भी होस्टिंग है उसको मैं एक एक करके इसी से देता रहता हूं। मतलब सीधी सी आपको सीधे एग्जांपल दे रहा हूं। एक केक है, उस केक में से आप काट काट के सभी को दे रहे हो। क्लियर है? एक बड़ा सा 2 पाउंड का केक है, उस केक में से आप सभी को एक एक छोटा छोटा टुकड़ा काट काट के दे रहे हो। सिमिलरली आप सभी को एक एक होस्टिंग दिए जा रहे हो। मेन तो एक केक होना चाहिए ना, तो वो मेन केक यही है, mytgbrand.com। यहां तक क्लियर है चीजें? लक्ष्मी, एक चीज बताऊं, यहां पर होस्टिंग जो है, होस्टिंग में आपका अनलिमिटेड स्पेस है। मेरा पूरा सर्वर है तो इसमें अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं 10,000 डोमेन भी रखना चाहूं रख सकता हूं, 2 डोमेन रखना चाहूं रख सकता हूं, 100 डोमेन रखना चाहूं रख सकता हूं। देयर इज नो लिमिट टू इट बिकॉज द सर्विस दैट आई हैव टेकन, ये सर्विस है फॉर अनलिमिटेड डोमेन्स। जितना डोमेन चाहूं ले सकता हूं। हाँ, अनलिमिटेड है मेरा वाला। आपका लक्ष्मी अलग अलग साइजेस के आते हैं, जैसे नमन ने बोला था, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग स्पेसेस के, अलग अलग बैंडविड्थ के आते हैं। तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे नमन ने बताया, 119 वाला अगर आप होस्टिंगर का ले रहे हो तो 119 वाला आप बिल्कुल लो, बिकॉज उसमें बैंडविड्थ जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। हालांकि अभी आपको उतना बैंडविड्थ चाहिए नहीं, बट फिर भी इन द नियर फ्यूचर अगर आप उसको प्रमोट करोगे। कॉस्ट ऑफ लिनक्स से ये तो अलग अलग जगह की अलग अलग है रेणु जी, ये आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू चेक दिस बिकॉज आई एम नॉट अ सेलर ऑफ होस्टिंग। इट इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। होस्टिंगर में आप जाइए, hostinger.com में जाके आप देख लीजिए। नमन आई थिंक वुड बी द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन दैट। वहां पर I'll just add one point here. Currently, okay, we are trying to explain you about simple पूरा एक concept clear कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा आप confuse मत होइएगा, ठीक है? Because you are new, ठीक है? So simple, buy a domain from GoDaddy, buy hosting from Hostinger, just to start, ठीक है? Exactly. rather than आप 1-2 महीना 3 महीना जब वेबसाइट बना लेंगे, you will get more details there, ठीक है? Then you can try experimenting it. So keep in mind, buy it from domain from GoDaddy and that from hosting from Hostinger. Keep it simple like that. Yes, you can do that. You can start adding that. Okay, Upal, please go on. Please go on. Yeah. Prabhakaran, if you can just switch off the video because it is actually deteriorating the speed. Prabhakaran, can you please switch off the video because ये speed को खत्म कर रहा है. All right. So coming to the point now, जैसे मैं आपको बता रहा था,
तो इसका डोमेन नेम वगैरह जैसे कंट्रोल पैनल का, सी पैनल का एक लॉगिन आईडी भी होता है। जैसे उसका प्राइमरी डोमेन होता है, उसका लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड सब कुछ होता है अलग से। तो इस लॉगिन आईडी में और इस पासवर्ड में आप लॉगिन करोगे। हालांकि मैंने सेव करके रखा है इसीलिए मुझे अलग से डालना नहीं पड़ता है, अदरवाइज हमें अगर मैं कहीं और डोमेन रखता और ये होस्टिंग रखता तो मुझे अलग से ये लॉगिन करना पड़ता। हाउएवर अब चलते हैं सर्वर में। सर्वर में ये कहां पर, मैंने कौन से डेटा सेंटर में ये मेरा सर्वर रखा हुआ है, ये एशिया में रखा हुआ है। अगर मैं चाहूं इसे यूएस यूके सब में रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकता हूं, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका मतलब का चीज जो है वो है ये आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस को आपको याद रखना पड़ेगा। ये आईपी एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूं आप लोगों के सुविधा के लिए, क्योंकि आगे मैं जो चीज करने जाऊंगा उसमें आपको ये समझाना इजी रहेगा। जहां तक बात है कि सी पैनल की, अब मैं सी पैनल खोल रहा हूं। भाई द वे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत? मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, otherwise I can go in English also, that is not going to be a problem at all. All right, okay, great. So let's go for this. ये सी पैनल मैं खोल रहा हूं, that is control panel. यहां पर क्या क्या चीज है, यहां पर लगभग सारे चीजें आपको मिलेंगे। ये है फाइल्स, जहां आप फाइल मैनेज कर सकते हैं। फाइल मैनेज का मतलब है जब आप होस्टिंग आप दे देंगे, होस्टिंग देने के बाद आपको यहां पर जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे, जो भी वेबसाइट का फाइल आप अपलोड करेंगे, अगर आप HTML वगैरह यूज कर रहे हैं तभी आपका इसका जरूरत है, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग वर्डप्रेस में करेंगे तो इसको आप भूल जाइए, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, ये आपके डोमेन्स हैं। यहां से आप कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं इसको आपको पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं इंस्टॉल करूंगा, करके दिखाऊंगा। दिस इज एड ऑन डोमेन। यहां पर आपको जो भी डोमेन है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, जो भी डोमेन आप होस्टिंग देना चाह रहे हैं। अब जैसे नमन ने अभी कोई डोमेन बुक करने की कोशिश की थी, जो भी डोमेन अगर वो बुक हो जाता namannaya.com, तो मैं यहां पर लिखता नमन, हालांकि उन्होंने ये खरीदा नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये बुकिंग होगा भी नहीं। यहां पर ये लिखते, ऐड डोमेन करते, तो ये डोमेन ऐड हो जाता और ऑटोमेटिकली ये अपना रूट वगैरह सब कुछ अपना अपना, ये अपना सब डोमेन वगैरह सब कुछ ले लेता। ये ब्यूटी है GoDaddy की, जिसके वो ज्यादा पैसे लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे नया डोमेन को आप ऐड कर सकते हैं? ओके, ग्रेट। किसी को कोई डाउट इसमें? ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा जब भी आप होस्टिंग लो, ये बैंडविड्थ आप जरूर देख लेना कि बीच सड़क पे बैंडविड्थ खत्म ना हो जाए, फिर आपके साइट विजिट नहीं होंगे, वहां पर दिखाएगा बैंडविड्थ इज ओवर, ऐसे करके दिखाएगा। तो इसीलिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला ही होस्टिंग लेना। ऑलराइट, नाउ कमिंग डाउन टू ईमेल्स। जैसे आप ईमेल अकाउंट में चले गए, ईमेल अकाउंट में जाने के बाद यहां पर आप क्रिएट ईमेल कर सकते हैं। अब ये क्रिएट ईमेल में मैं गया, मेरे पास अभी अवेलेबल ईमेल्स जो है 463, 463 ईमेल्स मेरे पास अवेलेबल है जो मैं दे सकता हूं लोगों को।
होस्टिंगर का ईमेल कंट्रोल पैनल मेरे पास नहीं है, GoDaddy का दिखा रहा हूं. इट इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू एवरीवेयर. सी पैनल इज ऑल द सेम, सबका सेम है, अनलेस वो उसको कस्टमाइज ना करके रखे. सो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जान गए, आप कोई भी दुनिया का कोई भी सी पैनल आप खोल सकते हो. ठीक है. और जहां तक बात है, ये इतने सारे डोमेन्स हैं, कोई भी डोमेन का आप यहाँ पर, इतने सारे डोमेन्स मेरे पास है, इतने सारे डोमेन में कोई भी आप, सपोज आप ये QCS टेक ले रहे हो, तो यहाँ पर आप यूजर नेम का मतलब है ईमेल आईडी. अगर मैं डाल दूं info@qcstech247.com, ऐसा आ जाएगा. यहाँ पर अगर मैं कॉन्टैक्ट दे दूं, contact@qcstech247.com, जो भी मैं डोमेन सिलेक्ट करूंगा, जो भी, जैसे ये onlyenglish.com, onlyenglishonline.com, तो onlyenglishonline.com में अगर कॉन्टैक्ट दिया तो ये आ जाएगा onlyenglishonline.com. फिर यहाँ पर दूंगा care, care@onlyenglishonline.com. ऐसे करके ईमेल क्रिएट किए जाते हैं. ईमेल क्रिएशन तक क्लियर है? सेम वहां पर भी होगा, आई एम क्वाइट श्योर. हालांकि मेरे पास उसका एडमिन नहीं है, बट इट इज क्वाइट एविडेंट. नो, email is a part of hosting service, it is not a part of domain. email is a part of hosting service. हाँ, कुछ डोमेन्स हैं जो ईमेल्स देते हैं, डेफिनेटली कुछ डोमेन्स हैं जो अपना ईमेल्स देते हैं, बट वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं. लेकिन होस्टिंगर वगैरह, जहां तक मुझे पता है, ये लोग फ्री में ईमेल देते हैं. अगर मैं होस्टिंगर का, मुझे पता नहीं, नमन को पता होगा, तो होस्टिंगर में ईमेल्स वगैरह फ्री आता है काफी सारा, तो वही 500-600 ऐसे ईमेल्स फ्री आते हैं. तो अपना अपना क्रिएट करते रहो, अपना नाम डालो, और वो डोमेन नेम तो ऑटोमेटिकली ले लेगा. सिर्फ आपको पहला हिस्सा लेना है अपना नाम का, या जो भी नाम, केयर, इन्फो, कॉन्टैक्ट, जो भी, सेल्स, परचेज, जो भी आपको डालना लगे वो आप डाल सकते हैं. राइट. तो ये इस तरीके से आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं. अब वापस आ जाते हैं हमारे पैनल पे. ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये आपको देखने की जरूरत नहीं है. सिक्योरिटी वगैरह, जहां तक है SSL, ये आप लोगों को अभी करने की जरूरत नहीं है. इसको समझने की जरूरत इसलिए नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. तो SSL जो है, ये नमन आपको गाइड कर देगा कहाँ से लेना होगा या कुछ. हाँ, होस्टिंगर अगर 100 ईमेल्स प्रोवाइड करता है, देन इट्स गुड. 100 ईमेल्स भी बहुत होते हैं, उसमें भी अनलिमिटेड स्पेस होता है ना. हाउ डज इट मैटर. सो एनीवेज, और ये सारे होस्टिंग हम लोगों ने डाल रखा है. अब आपको मैं एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा. नमन, is it okay if I go ahead with the WordPress installation? Sure, please go ahead. Okay. मेरा एक डोमेन है businesspromos.com करके, तो उसी के ऊपर मैं ये एक डाल देता हूं. ये है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज ये देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा प्लीज. राइट, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, ये दिख रहा है, ये बटन प्लस वाला. सिर्फ 2 ही लोग जवाब दे रहे हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सी पैनल से ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. सी पैनल में वर्डप्रेस फ्री रहता है. इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. So WordPress is absolutely free and the most trustable and the most SEO friendly platform, that is WordPress. इसी कारण से लोग WordPress में ज्यादा जाते हैं. ऑलराइट, सिर्फ 3-4 लोग ही अभी तक रिस्पॉन्स किए हैं. मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, लाइक सारे लोग. People, if there's any confusion, please ask the question. ये टेक्निकल पार्ट है, ठीक है. तो टेक्निकल पार्ट में इंस्टेंटली
कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है. वील शेयर द वीडियो, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट टेल अस, सो वील एक्सप्लेन इट लेटर. इट्स लिटिल डिफिकल्ट, यस जय, आई अंडरस्टैंड. उसके लिए वीडियो होगी तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड करने का तरीका. इसीलिए आई एम गोइंग वेरी स्लो, लाइक इट इज, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स डिफिकल्ट, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो. एंड सुबोध, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, wordpress.in.com.org आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सी पैनल में जाना है. सी पैनल में देखिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको. Those who has missed it, please take it out and please note it down. So WordPress is a software, it's not a website. Okay, so that's why it's not .in or .com. जो मैंने www का शुरू में बताया था, ठीक है, वो चीज. No, Jay, there is no problem. You can ask basic questions, okay? Because we also understand. यहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल नए हैं, basic से सीखना चाहते हैं. That's why we are trying to explain it and sharing the video. तो आप step by step follow कर सकते हैं. All right, Jay, the thing is, why do we need cPanel at all when we have hosting? Okay, hosting and domain. आपका एक चीज बताइए. Let me put it in this way. For everyone, this is for everyone. I think this question might be for everyone, and he has asked a very good question. So, cPanel का काम क्या है? cPanel is control panel. इसके भीतर आपके सारे चीजें दिए हुए हैं. आपका डोमेन एक नाम है, जैसे आपका एड्रेस. मान लीजिए आपने बोला इनर सर्कल कनॉट प्लेस बिल्डिंग नंबर 13. अब बिल्डिंग नंबर 13 होना भी तो चाहिए. तो वो बिल्डिंग नंबर 13 जो आप बोल रहे हो वो एक एड्रेस है. आप अगर आप बोलोगे इनर सर्कल कनॉट प्लेस, इनर सर्कल बहुत बड़ा है, कनॉट प्लेस भी बहुत बड़ा है, अब उसमें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं. वो तो एक एड्रेस तो हो गया, एड्रेस तो गलत नहीं है. दैट इज व्हाट डोमेन नेम इज. अब उसके जगह पे एक आपको तो जगह भी देना पड़ेगा ना. तो वो हो गया, मान लीजिए प्लॉट नंबर 13. अब प्लॉट नंबर 13 जो है, दैट इज व्हाट होस्टिंग इज. आप सिर्फ प्लॉट नंबर 13 होने से ही काम हो जाएगा. उसमें आप घर नहीं बनाओगे, दरवाजे नहीं रखोगे, रूम्स नहीं बनाओगे. दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ सी पैनल. नहीं, यू कैनॉट गो टू सी पैनल जस्ट बाय टाइपिंग ऑन गूगल. आपको जहां से आप होस्टिंग ले रहे हो, होस्टिंग में जाना है, लॉग इन करना है. दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, यू हैव टू हैव होस्टिंग यूजर नेम, होस्टिंग पासवर्ड. मैंने ये पहले ही बोला था, राइट? रेणु जी आपको बोल रहा हूं मैं. सो यू हैव टू हैव अ यूजर नेम, यू हैव टू हैव अ पासवर्ड. ये मैंने पहले ही दिखाया था आपको. इफ यू रिमेंबर, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन वंस अगेन, प्लीज चेक इट आउट. This is what the username and password was. Remember, cPanel login username, cPanel login password. ये मैंने दिखाया था उस टाइम आप लोगों को. That is what I'm saying. WordPress. So WordPress is a featured application. Simple सा रखिए, ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप चीजों को कर सकते हैं. सो आप ये वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए, यहां पर जाके आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन. तो इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, आपको दिख रहा है ये इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? कम ऑन गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके, ग्रेट. Absolutely, Wix is also like WordPress, but WordPress में आपका watermarks वगैरह नहीं होता. Wix में हमेशा Wix चारों तरफ दिखाएगा, लोगों को दिखाएगा आपने Wix में बनाया, आपने इसमें बनाया, आपने उसमें बनाया. It doesn't make any good sense. So, and this is much trustable. और सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा आपके Google friendly है WordPress. We'll tell about Wix at the end of this whole course, so we'll give introduction for that as well. Okay, so don't worry about that.
ओके, सो यहाँ पर है mytgbrand.com। अब mytgbrand.com में मैं जा रहा हूँ। जाने के बाद यहाँ पर मैं बिजनेस प्रोमोस बोल के हैं, इस बिजनेस प्रोमोस.com में मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो इसमें आप क्लिक कीजिए इसको, businesspromos.com, ये है हमारा डोमेन। अब इसको मैं ब्लॉग वॉग उड़ा देता हूँ, ये सब जरूरी नहीं है। वर्जन वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। खाली यहाँ पर जाके आप अपना एडमिन चेंज कर दीजिएगा अपने सहूलियत से, क्योंकि ये नाम मुझे तो याद नहीं रहने वाला। आप लोगों को याद रह सकता है तो रह सकता है, मुझे याद नहीं रहेगा। मैं तो इसको सिंपल सा रख रहा हूँ, बिजनेस प्रोमोस करके। Any doubt in this? Any confusion in this? Lakshmi, which one do you want me to repeat? Lakshmi, which one do you want me to repeat? Can you please type it here? Okay. I said for admin, admin का जो नाम है, ये admin का नाम जो सिस्टम ने दिया था मुझे याद नहीं रहेगा. I will not be able to remember it. So I changed the name. It's as simple as that. I changed the name to my own way. So this will be your login ID and password, like आप Facebook में login करते हैं, email में login करते हैं, same way जब WordPress में आप login करेंगे, तो उसके लिए आपको एक login ID password होगा. So that's what you are creating. Right. Similarly, यहाँ पर पासवर्ड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड खुद का रखूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. ये मैंने यहाँ पर डाल दिया. अब एडमिन ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में आपके सारे डिटेल्स जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा और इसको जरूर चेंज कर दीजिएगा. तो लेट मी पुट इट इन दिस वे. मैंने एक अपना ईमेल डाल दिया. और जहां तक वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट टाइटल में ये दे रहा हूं कि ऑनलाइन प्रमोशन. या टैगलाइन वगैरह डालने की जरूरत वैसे तो है नहीं, मैंने जस्ट ऑनलाइन प्रमोशन डाल दिया. यहां तक सारे लोगों को क्लियर है. सिंपल था, वैसे कुछ नहीं था, सिर्फ ये सिलेक्ट करना था. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डोमेन है तो मैंने एक डोमेन में आपको करवा दिया. इसमें आपका सिर्फ नाम चेंज करना था, यूजर नेम, पासवर्ड चेंज करना था, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैंने सिर्फ ये चेंज कर दिया. और ये बाय डिफॉल्ट एक ईमेल ले लेता है, वो हटा के मैंने अपना ईमेल दे दिया. और वेबसाइट का टाइटल दे दिया, एक नाम अच्छा सा हो, उल्टा सीधा नाम ना हो जो मुझे ही पता ना हो ये मेरा वेबसाइट है. तो इसी कारण से मैंने यहाँ पर डाल दिया ऑनलाइन प्रमोशन या ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, ऐसा डाल देते हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन. तो yeah, we can definitely talk, but after this particular session, right? How did I come to this admin area? My goodness, I showed you the entire way. इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे हो लक्ष्मी जी. Okay, Lakshmi, we are running out of time. Okay, it's been like 2 hours, so we'll share the video. So you'll get. आप वीडियो देख लीजिएगा. आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है. ऑलराइट, सो अब हम इंस्टॉल करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल. ये पासवर्ड वगैरह ये मुझे सेव नहीं करना है. ये इंस्टॉल हो रहा है. ये प्रोग्रेस हो रहा है अभी.
थोड़ा टाइम लेगा। शुरू हो गया, दिख रहा है सबको, ये चल रहा है ये बात। It's already 50%. ग्रेट, 100% हो गया है। अब ये ऐसे दिखेगा। अब अगर हम लोग इसको देखें businesspromos.com को, मैं जस्ट एक राइट क्लिक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा ये। सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? ये हो गया अनकैटेगराइज्ड। अच्छा, यहां पर जो नमन दिखा रहा था आप लोगों को दिख रहा है, असुरक्षित करके दिखा रहा है, ये मतलब ये हमने SSL नहीं लिया, इस कारण से ये रेड स्ट्राइक आ रहा। इसका मतलब ये साइट सेफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आई विल शो हाउ टू लॉग इन टू वर्डप्रेस। यहीं पर मैं दिखा देता हूं, आप लोगों को इजी रहेगा। ये डोमेन नेम /WP, वर्डप्रेस का शॉर्ट फॉर्म WP -admin, ये नोट कीजिएगा। कोई भी डोमेन नेम हो, जब आप वर्डप्रेस कर लो, वर्डप्रेस के बाद /WP-admin करके एंटर लगा दीजिए। जैसे आप एंटर कर लोगे, ये आपको ले जाएगा यहाँ पर। आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले एक डोमेन नेम, यूजर नेम दिया था, बिजनेस प्रोमोस करके, और दूसरा दिया था उसका पासवर्ड। ये आपका लॉगिन हो गया है, और यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। यहाँ से आप कोई भी थीम आपको ठीक लगे, रियल एस्टेट हो, आर्ट डिजाइन हो, कोई भी, जितने सारे थीम हैं इसमें से कोई भी थीम आप डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ, फिटनेस वगैरह जो आपको ठीक लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यूजर नेम मैंने वहां पर सबको दिखाया था, आप प्लीज एक बार ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। जब मैं टाइप कर रहा था वहां पर यूजर नेम वगैरह, तो सबको मैंने दिखाया था कैसे मैंने यूजर नेम वगैरह क्रिएट किया था और कैसे मैंने पासवर्ड डाला था। मैंने सबको दिखाया था ये चीज उस टाइम पे। तो अब तो मैं दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, और आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, इसके लिए हम लोग अब चलते हैं इसके what are the theme like forest or Astra? See, there are many themes. There are many themes. I think Naman is the right person who can guide you on that. And there are unlimited themes which you can select. There are many. ये Alder है, ये Ashby है, बहुत सारे हैं. So there are unlimited themes and most of them are free.
So it is entirely up to you. Now I am exiting this. Okay, let me show you once more. यहाँ से मैं exit to WordPress dashboard. दिख रहा है ये? सबको दिख रहा है? Come on guys, please answer. Okay, great. इस चीज को मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूं जिनको नहीं दिख रहा है. ये एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा दिया. अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे. आर यू श्योर दैट यू वांट टू लीव? यस. आई जस्ट वांट टू एग्जिट. यहां से मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूं. ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर तो वो जबरदस्त बारिश हो रही है. पता नहीं, शायद नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा होगा. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट. सर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ. एंड दिस इज द होम पेज. ये रादर डैशबोर्ड है. आपके जो मेन स्क्रीन है उसके डैशबोर्ड है. इस डैशबोर्ड में आपको सारे प्लगइन्स, आपके अपडेट्स, आपके पोस्ट्स, पेजेस, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा. यहीं से आप सारे चीजें करोगे. जो भी करोगे यहीं से करोगे. इसके बाहर कुछ नहीं, डैशबोर्ड के बाहर. So from here, I think Naman can take over. And Naman, did I miss out on anything? No, Uppal, thank you very much for that great explanation. So people just stop it at this point. ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि it's technical. ठीक है, बहुत लोगों को confusion हो रहा है. ठीक है, बहुत लोगों को problem हो रही है because उन्होंने कभी करा नहीं है. I understand, मेरे को भी हुआ था. ठीक है, हर किसी को रहता है. ठीक है. Now I'll quickly go ahead and take you ये पूरा प्रोसेस में 4 पॉइंटर्स में आपको समझा देता हूँ. ठीक है. So I'll quickly go ahead and share my screen. ठीक है. All right. Just before you go ahead, Naman, I just wanted to thank each and everyone. And chalo, I'll just drop off because I have some pre-assignments which I need to complete. Sure, right? Sure. Okay. So, maybe you know that I also have classes of my own. Yeah. So, Thank you very anybody much has any question related to anything? Quickly, 1 or 2 questions. I think Badrish was raising his hand again and again. So, if I can answer your questions, if you can just tell me what exactly the question is. If you can just type it, Badrish. Badrish, are you there? My contact info is not required because Naman will be taking care. And generally I don't teach internet. It is just because मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया कि मैं मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड था. नमन इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकता था, बट नमन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास यूजर नेम पासवर्ड का इशू आ रहा था, तो उसने मेरे से हेल्प लिया. मैं ये इंटरनेट का सेशन नहीं लेता, मैं इंटरनेट वगैरह नहीं कराता. मैं मेरा सब्जेक्ट्स अलग है. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हूँ. और इसके अलावा मैं अपना कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब कराता हूँ. अदरवाइज आई डोंट टीच ऑल दिस थिंग्स. इट इज जस्ट दैट Naman was facing some issues. That is the reason I helped him out. It's as simple as that. आपको अगर कुछ इसमें जैसे बद्रीश होस्टिंग एंड डोम्स, व्हाट इज डोम्स? सर आप तो डोमेन एंड होस्टिंग दोनों भी GoDaddy में किया है, इसलिए वो आ रहा है सी पैनल. हाँ, अगेन नमन सर में बोला था ना, होस्टिंग दूसरे जगह से लिया तो सी पैनल किधर आता है उसी का? देखिए, अगर आप दूसरे जगह से होस्टिंग लेते हैं ना, तो उसका भी यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा. इफ यू ओपन होस्टिंगर, नमन कैन यू प्लीज ओपन होस्टिंगर वंस? नहीं, अभी डोमेन एंड होस्टिंग एक ही में GoDaddy में है आपका लॉगिन, इसलिए वो एडजस्ट हो चुका है. एग्जांपल में होस्टिंग दूसरे जगह से लिया तो वो कॉपी पेस्ट करना है ना,
Oh, means So अगर I'll आपने explain. होस्टिंग दूसरे जगह से लिया तभी वो जो आईपी आपको दिखाया था मैंने, आपने अगर नमन, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन वंस अगेन, Okay. जस्ट अलाउ मी वंस। हाँ, इनको जो इनका वैलिड एक क्वेश्चन है, लेट मी गो अहेड एंड रिजॉल्व दैट फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, लेट मी शेयर दैट। नमन, जस्ट क्विक वन। ओके, ये तो यहाँ पर कहाँ गया? ओके, ये जो आपको मैंने पहले दिखाया था, ये जो है, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। ये चेंज होना है, ये पॉइंट होना है। आप कहाँ से आप करोगे? आप कोई सा भी, अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप माई प्रोडक्ट्स में गए, ठीक है, इसमें जाके आपको चेंज करना है, तो वहां पर जहां से आपने डोमेन लिया है, डोमेन में जाके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स चेंज दिस वन, माई टीजी एक्सपोनेंट इंडिया करते हैं। चलिए, मैनेज करता हूं, डीएनएस में जाता हूं। डीएनएस इज डोमेन नेमिंग सर्वर। डोमेन नेमिंग सर्वर में ये होता है, जहां डोमेन एक जगह पे है और होस्टिंग एक जगह पे है, तो दोनों का शादी करा देंगे, सीधी सी बात है, ताकि दोनों एक जगह आ सके। तो यहाँ पर जैसे मैंने डीएनएस पे क्लिक किया, यहाँ पर ये आ गया। ये वैल्यू जो है, इसमें आप एडिट करोगे, एडिट करके यहाँ पर वो डोमेन जो अभी मैंने आपको आईपी दिखाया था ना, ये आईपी यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ए होस्ट में ये डाल दोगे, बस इन दोनों की शादी हो जाएगी। ये ए रिकॉर्ड जो है, इसमें आपको डाल देना। Okay. If you take it, अगर आपने किसी और से लिया है, लेट्स सपोज आपने GoDaddy से डोमेन लिया, ठीक है, और आपने होस्टिंग ली होस्टिंगर से, तो आपको इधर से नीचे जाके ऊपर, कैन यू ड्रैग डाउन? हाँ, या मैं वो भी दिखा देता हूं। नेम सर्वर वाला कॉन्सेप्ट, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे जाओगे, उनका जो होस्टिंगर का जो डोमेन सर्वर होगा, वहां पर जाके ये नेम सर्वर में ये जस्ट स्क्रॉल डाउन किया मैंने, ठीक है। ये तो करना ही करना है, दिस इज मैंडेट। ये ऐसा नहीं कि ये भी करना है वो भी करना है, ये करना ही करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जाना है, आपको चेंज करना है, और ये चेंज करके यहाँ पर आपको डीएनएस डाल देना है। जो नया जो डीएनएस होगा वो आपको डाल देना है यहाँ पर। दिस इज हैज टू बी डन जब आप डोमेन अलग ले रहे हो और होस्टिंग अलग कंपनी से ले रहे हो, तभी नेम सर्वर चेंज होगा। अब नेम सर्वर का क्वेश्चन आता है, मिलेगा कहाँ से? व्हेन यू लॉग इनटू होस्टिंग, तो वहां पे आपको नेम सर्वर आपका दिख जाएगा, जहां पर आपको मेल मिलेगा। आपको एक ईमेल देंगे, वो ईमेल भेजेंगे, उस ईमेल में आपको सीधा लिखेगा ये डोमेन नेम है, ये आपका होस्टिंग है, ये इस डोमेन नेम, ये प्राइमरी डोमेन नेम है, ये होस्टिंग का यूजर नेम है, होस्टिंग का पासवर्ड है, ये आपका होस्टिंग का ये ए रिकॉर्ड है, ये सी नेम होगा, ये सी नेम होगा। ये सारे डिटेल्स, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ये सारे डिटेल्स आपको ईमेल किया जाएगा। एमएक्स रिकॉर्ड ऐसा होगा, ये एनएस रिकॉर्ड ऐसा होगा, एसओए ऐसा होगा, ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे उसी होस्टिंग वहां से। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, डीएनएस में क्लिक करना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इस डीएनएस में क्लिक, जो डोमेन आपको चेंज करना है ना, जैसे मैंने exponent.in का किया था, तो exponent.in के ही उसमें आपको डीएनएस में जाना है, डीएनएस में जाके ये सारा चेंज कर देना, बस 10 से, और कोई टेंशन ही नहीं। दोनों का शादी करा दो और दोनों को बोलो खुशी खुशी जिंदगी बिताए। Okay, and one more sir, you told SSL, no sir, that is अभी नया वाला का श्योर डेफिनेटली चाहिए, नहीं चाहिए सर वो वाला? कौन सा नया वाला? मींस सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी। It's up to you. SSL, if you okay, let me clear it very clearly. SSL is secured socket layer. Secured socket layer का मतलब होता है जो आपका सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, ये लॉक्ड है, मतलब ये आपका सिक्योर्ड साइट है। आप एक जगह पे जाओगे, अगर आप एक, मान लीजिए आप एक थाने में जाओगे रिपोर्ट लिखाने, वहां पर आपको पता चलता है लोगों से कि भाई यहाँ पर थाने में आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, तनख्वाह लेते चले जाते हैं। अगर आप रिपोर्ट लिखाने जाओगे, आप ही के नाम पे केस दर्ज कर देगा, तो आप उस थाने में जाओगे? कभी नहीं जाओगे। सिमिलर विद एसएसएल, आप अगर एक साइट यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं है, आप उस साइट से कुछ डाउनलोड करोगे, आप उस साइट में कुछ खरीदोगे, आपको तो डर रहेगा भाई मेरा सारा इंफॉर्मेशन ये ले लाने, ये तो गलत कंपनी हो सकती है,
SSL का काम ये है, SSL आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये लोग ट्रस्टेबल है, मैंने इसका सारा वेबसाइट वगैरह सारा चीज देख लिया है, ये सारे वर्दी होते हैं, ये सारे चीज आपको मतलब कोई गलत चीज आपसे शेयर नहीं कर रहा है, और उसके लिए काफी सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, डिस्क्लेमर्स होते हैं, बहुत सारे चीज उसमें लिखा जाता है, तब जाके आपको SSL मिलता है। ऐसे आप SSL नहीं ले सकते, पैसे देके आप SSL लोगे तभी वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो, जब तक आप उनके चीजों पे खड़े नहीं उतरोगे, सिंपल सी बात है। इसी कारण से SSL वो दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। तो SSL को लेके आप इतना टेंशन मत लीजिए, यू ऑल आर इन वेरी सेफ हैंड्स। नमन इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, वो मेरे साथ गूगल में काम कर चुका है पहले, एंड ही नोज वेरी वेल हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स, very safe hands, even safer than mine, I am telling you. Okay. Because he is a person who has enormous, इनका धीरज है, इनका पेशेंस लेवल को मैं नमन को नमन करता हूँ पेशेंस लेवल के लिए। बाकी to be very honest, he will be the right person to guide you, and don't do anything what he doesn't suggest. अगर वो कुछ मना कर रहा है उसे मत करो, जो बोल रहा है उसी को फॉलो करो, तभी आप सीख पाओगे। एक बार सीख लो फिर R&D करो, बिना सीखे R&D मत करो। It's very clear and very straight to you guys, right? Okay, sir. And Any questions, anybody? Last question, what is the best preferable? GoDaddy में सर्वर लेना है, अगेन डोमेन में उसी में परचेस किया तो अच्छा है, नहीं तो होस्टिंग दूसरी जगह से लिया तो भी परवाह नहीं। सर अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, then you can go to Hostinger as Naman suggested it. Okay, ना last I will check. Okay. Simple, सस्ता, हाँ थोड़ा सा स्लो चलता है कभी कभार, लेकिन वो it's good, it's not bad. और अगर आपका पैसा ज्यादा फूकने का इच्छा है एंड आप लेजी हो, कुछ नया सीखना नहीं चाहते हो, आप कोई टेंशन में नहीं आना चाहते हो, गो फॉर GoDaddy। सर मेरा वेबसाइट बन रहा है अभी वेजिटेबल्स का मार्केटिंग के लिए, मींस फ्लिपकार्ट जैसा करके, उसी में तो वो कस्टमर ज्यादा लॉग इन करता रहता है, इसलिए SSL का पूछा सर मैं, नहीं किस नहीं, फिर तो SSL इज मैंडेटरी, बिकॉज उसके अलावा मैं खुद मार्केटिंग नहीं करता, मैं खुद अगर जाता हूँ पहले देखता हूँ SSL है या नहीं उसके साइट पे। कल पता चला कि चाइनीज वाले मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले, क्या फायदा, तो वो करना नहीं है। पेमेंट ऑप्शन रहता है, मेरा में पेमेंट ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मेन इंपॉर्टेंट। Any more questions, anybody? I think I have answered everybody's questions, right? Okay, thank you, sir. All right, and thank you guys for being so patient, and have a wonderful class with Naman. Chalo Naman, I'll just drop off. Thank you. Okay. All right, bye-bye, take care. So I know it's confusing about what we did today, and it's confusing for everyone who did it for the first time. So don't panic. ठीक है, आप लोगों के कई जगह की क्वेरीज क्लियर हुई हैं, ठीक है, कई लोगों के अभी भी क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट, मेरे भी थे। सो आई टेक यू क्विकली, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाइक 2 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्विकली इस पूरे प्रोसेस को 4 पार्ट्स में समझा देता हूँ, देन वर्डप्रेस का थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, देन वील गो अहेड एंड एंड द सेशन, ठीक है। सो आई गो अहेड एंड क्विकली डू दैट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। कैन यू सी माय स्क्रीन? Can you type yes or no if you can see my screen? Great. Okay. So पहला चीज, we have to buy a domain. Domain आपको पता है GoDaddy से लेना है, ठीक है। फिर वेब होस्टिंग अब आपको पता लग गई है, वेब होस्टिंग जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट रखते हैं। होस्टिंग कैसे लेनी है, वो चीज। cPanel, आपने डोमेन खरीदा, होस्टिंग आपने खरीद लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब मर्ज करने के बाद जो वर्डप्रेस होता है वो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो वो cPanel से जाके इंस्टॉल होगा। उसके बाद इस पे एक पॉइंट आता है, नेम सर्वर का क्या है। जब हम वेब होस्टिंग या होस्टिंग को डोमेन से कलेक्ट करेंगे तो नेम सर्वर यूज होगा। नेम सर्वर चेंज होने के बाद वो होस्टिंग कंबाइन हो जाएगी, फिर हम cPanel पे जाके अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद देन यू कैन लॉग इन, ठीक है। दिस इज
ये 4 स्टेप में आपका वेबसाइट इंस्टॉल भी हो जाएगा और क्रिएट भी हो जाएगा। दैट्स वन थिंग। प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस, जूमला, डुप्लेक्स, मोडेक्स। इसके बारे में चाहे आप पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, बट वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस और दूसरा विक्स और बाकी सबके कंपैरिजन में वर्डप्रेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू मेक। आप बना सकते हैं, ये टेक्निकल पार्ट है। अब जब हम आगे जाएंगे वो इससे भी और इजी होगा, ठीक है। अब सॉरी, आज डिफिकल्ट था, वो इजी रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा वर्डप्रेस पे। सो आप बिना कोडिंग के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत ही स्टेबल रहती है, मतलब एकदम ठीक रहेगी वेबसाइट, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, मतलब अपनी वेबसाइट को आप और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, अब ब्लॉग की वेबसाइट है, वो एक छोटी वेबसाइट होती है। अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें कई सारे रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो स्केलेबल होती है। तो वो दोनों पार्ट में वर्डप्रेस काम करता है, ठीक है। प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स का एक बेसिक बता देता हूँ। कुछ एड ऑन हमें करना होता है अपनी वेबसाइट में, उसके लिए प्लगइन्स होते हैं, लाइक एन ऐप। कुछ करने के लिए हम ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने वेब में, रिकॉर्डिंग करने के लिए हम ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, ठीक है। ये सारी चीजें, कुछ फोटोज में हमें चेंजेस करते हैं, उसके लिए हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वैसे प्लगइन्स होते हैं, वील कवर दैट लेटर, ठीक है। इजी टू यूज इवन फॉर न्यूबीज, जैसे आप लोग नए हैं, ठीक है, कोडिंग नहीं आते, इट्स इजी टू यूज। कंप्लीट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा कंट्रोल रहता है आपका, और फ्लेक्सिबिलिटी, आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं उसमें एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इजी टू गेट हेल्प, कोलैबोरेशन, हर किसी को वर्डप्रेस के बारे में पता होता है, ठीक है। आप कहीं और से भी हेल्प लेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेट्स सपोज आज से 5-6 महीने बाद आपको कोई दिक्कत आए, मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा आज से 6 महीने बाद भी। लेकिन अगर नहीं होगा तो आप किसी और से भी हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी चीज एसईओ, योर होमवर्क वुड बी रीड अबाउट एसईओ, ठीक है, दैट जस्ट फॉर नॉलेज। आप एसईओ का कॉन्सेप्ट समझिएगा, व्हाट इज एसईओ, इसके लिए वीडियो देखिएगा, ठीक है। कीवर्ड इज व्हाट इज एसईओ, है ना, ये चीज आप समझिएगा। वो कैसे वर्डप्रेस को प्रेफर करता है गूगल भी आपको ऊपर आने के लिए, ठीक है। सो अगेन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस सीएमएस, व्हिच इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम सारा कंटेंट एक जगह मैनेज कर सकते हैं, लाइक आवर वेबसाइट एंड एवरीथिंग, which help us to make website in an easy manner. WordPress automatically convert English to coding language and make a web page for us. आपको कोई कोडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप खाली इंग्लिश में वहां पे लिखें, वो अपने आप उसे कोड में बदल देता है, ठीक है। इसमें आपको कोड की कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज नो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड इट शैल बी डन। ये सिंपल तरीके से रखा जाएगा अगर आपको वेबसाइट बनानी है। Need to buy blog. Okay, you have to buy a domain, Renu. Then you have to install it in hosting. जब आप थीम इंस्टॉल करें, तो थीम, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो ई कॉमर्स वाली थीम लगाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग की थीम हम इंस्टॉल करेंगे, बट यू डोंट हैव टू बाय ब्लॉग। आपकी दो ही इन्वेस्टमेंट है, वन इज डोमेन नेम, सेकंड इज होस्टिंग, दैट्स इट। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। Okay, installation we already told you. Okay, now we take question and answers. Okay, please tell me if you have any question and answers. Question. Sir, I have my domain purchased 10 years ago on India Links. Now, how can I find out its DNS and all, how I manage? From where you purchased? India Links. India Links 10. So India Links isn't working, so we have to check. What you can do is you can contact them, okay, India Links, and ask for the DNS for that, okay. And what is the domain name? Can you tell World me? on Vastu. worldonvastu.in.com. What exactly is that? .com. Okay, you can ask for the DNS from them. Okay, yeah. That's how you can do it. Subodh, okay, I'll unmute you. Just give me 1 minute. Hello. Subodh, please tell me. My voice is audible? Yeah, Subodh, please tell me. Okay. So thanks for this session, Naman, first. And Upal was too good to explain the entire process about cPanel. My question is, Naman, I have bought 2 months back my domain from Namecheap, that is subodhlangre.com. Okay.
now if and I could not create my website because of some other priorities, but now Okay. I have joined this class, so yes, my ultimate objective is to create my website. Okay. And now how to go? Should I continue with the namecheap that's subodhlagre.com, or should I purchase the new domain and go with whatever the you No, guys no. are If you instructing? already if you already have a domain, okay, we told you two ways. One is if you purchase it from GoDaddy and you have the hosting from GoDaddy, okay, you can combine it. Okay, if you purchase the domain from Namecheap and then you connect with GoDaddy or Hostinger, we told you that how you have to change it by changing the name server. Okay, so Okay. then my idea was that to continue to purchase the hosting from Namecheap itself, but then what is your advice over here? Should I go with No, Hostinger, if you GoDaddy, have or Namecheap? already if you have for hosting, go with Hostinger. Okay, for Acha. domain, recommendation is GoDaddy, but if you have already purchased from Namecheap, okay, you can do that. Don't invest more money if you have already invested. No? Okay, because that was our purchase only for 1 year, but then I think in the class we have been told if you wanted to go for longer period, it will be better rather than going for renewal. It become very costly. That is correct. It becomes costly. It's up to you, okay, whether you want to invest, because our job is to tell you what would be the best, okay. And but you have to make a website. You have to at least do the basic. At least you have to purchase it for 1 year. Okay. Let's suppose you have a goal of like for a long term. Okay. Then you purchase it for 4 years. Okay. Because next year again you have to renew. If you don't want to invest much, then you can buy it for 1 year. It's your priority. But Okay, at so least then buy for 1 year. okay, so for the moment, then I will continue with Namecheap for 1 year. That is 2021, and I will go with Hostinger then for the Yes, hosting that's correct. part. Yeah. That's Yes. okay. Yeah. Fair enough. Thanks. Hello. Hello. Yeah, Yes. to end class because the next session is going to start on email automation Okay. from 12:30 to 2. If you have any doubt, you can ask in the WhatsApp group. Okay, In ma'am? the WhatsApp group.